میرے دل سے یہ بوجھ اتر گیا تھا کہ میں نے اسے کوئی پوشیدہ بات نہیں رکھی تھی۔ مجھے ڈان سے ملوانے کا سہرا اسد کے سر تھا۔ حالات تو واقعات کا پورا پس منظر اس کے علم میں آ چکا تھا۔ میں نے اس کی موجودگی میں ڈان کا نمبر ملا لیا۔ میں علی بول رہا ہوں ڈان۔ فون پر اس کی سرد اور سپاٹ مگر دبنگ آواز سن کر میں نے کہا، تم کتنی دیر میں آ سکتے ہو؟ اس نے مجھے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ آدھے یا پون گھنٹے میں نے سنبھل کر جواب دیا، کہو تو میں اس سے پہلے بھی آنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ فضول باتیں مت کرو، 1 گھنٹے بعد تم کو یہاں ہونا چاہیے۔ وہ کسی کھٹکنے کتے کی طرح گھرایا۔ فون بند ہو گیا۔ میرے لیے وہ تجربہ نیا نہیں تھا۔ میری حریف بارہا میری آواز سن کر ایسے رد عمل کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ مجھے ڈان سے ایسی سرد میری کی امید نہیں تھی۔ میں نے دھیرے سے فون بند کر دیا۔ وہ بھڑکا ہوا معلوم ہوتا ہے، اسد نے تبصرہ کیا۔ بہت زیادہ، میں نے اس کی تائید کی۔ اس نے پاسپورٹ لانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ معاملہ گول کرنے کی گنجائش نکل آئی ہے۔ یہ غلطی نہ کرنا، وہ تمہارے پاسپورٹ اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کر چکا ہے تو تم کسی طرح انہیں نہیں بچا سکتے۔ تم خود نہیں لے گئے تو تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہارے کمرے سے چرا لیے جائیں گے۔ تم نے دیکھ لیا کہ ہوٹل والوں کو اپنے مقصد کے لیے کس بے رحمی سے استعمال کرنے کی وہ اہلیت رکھتا ہے۔ اسد کی بات معقول تھی۔ بہتر یہ تھا کہ بگاڑ کو بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ڈان کے دماغ میں چڑھی ہوئی گرمی کو کم کرنے کے لیے اس کی ہدایات منوان مان لی جائیں۔ میرے اماں پر غزالہ نے اپنے وینٹی بیگ سے دونوں پاسپورٹ نکال کر میرے حوالے کر دیے۔ اب ہوشیار رہنا، میں نے جوتے پہنتے ہوئے غزالہ کو تاکید کی۔ تم نے ہماری ساری باتیں سنی ہیں۔ ہم یہاں بدماشوں اور ٹھگوں کے نرقے میں آ گئے ہیں۔ ذرا سی چوک ہوئی تو ہم بھاری نقصان سے 2-4 ہو سکتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، اس نے مسکرا کر اعتماد سے جواب دیا۔ ادھر کا رخ کرنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ غزالہ کا جواب سن کر اسد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے میرے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا مگر غزالہ سے اس کا تعارف آج بھی تھا۔ 100% گھریلو نظر آنے والی ایک پاکستانی خاتون کی زبان سے دنگا فساد کے بارے میں ایسا پر اعتماد جواب اس کے کانوں کے لیے اجنبی تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے حیرت سے پوچھا، تم نے بھابھی کو بھی اپنے رنگ میں ڈھال دیا ہے؟ وہ ڈلی ڈھلائی میرے پلے پڑی ہے۔ میاں بیوی ایک سانچے میں نہ ڈھل سکیں تو یہ گاڑی جھٹکے کھا کر چلتی ہے۔ غزالہ یہ بات جانتی ہے۔ ہوٹل سے باہر آ کر اسد نے پہلی خالی ٹیکسی میں مجھے سیلر بار کی طرف روانہ کر دیا۔ میں اپنی شکل و صورت ہی سے وہاں غیر ملکی لگتا تھا اور پھر ایک بڑے ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی میں سوار ہوا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی گاڑی کو ٹریفک میں شامل کرتے ہوئے بینکاک کی جوان سا لڑکیوں کے ذکر شرط سے اپنی گفتگو کی تمہید باندھنے کی کوشش کی اور میں نے اس ابتدائی مرحلے میں اسے سختی سے ڈانٹ کر خاموش کر دیا۔ مجھے یاد تھا کہ میں ان چند دنوں میں ایسے ڈرائیوروں کے ساتھ بھی سفر کرتا رہا تھا جو گندگی اور خرافات سے نالاں ہونے کے باوجود بینکاک میں اچھی روزی کما رہے تھے۔ میری تعدیب کے نتیجے میں میرا سیلرز بار تک کا سفر خاموشی اور تیز رفتاری سے طے ہوا۔ میں نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی تو 4 بجنے میں پورے 20 منٹ باقی تھے۔ ڈان کو تاخیر پسند نہیں تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ قبل از وقت پہنچنے پر اچھے تیوروں سے میرا استقبال نہیں کرے گا۔ میں سیلرز بار کی عقبی گلی کا رخ کرنے کے بجائے مین روڈ پر ایک قطار میں بنی ہوئی دکانوں کی طرف ہو لیا۔ ان کے درمیان سیلرز بار کا بند دروازہ دور سے نظر آ رہا تھا۔ بار 6 بجے کھلتا تھا، اسی وجہ سے ڈان نے مجھے 2 گھنٹے پہلے بلایا تھا تاکہ وہ ہر طرف سے بے فکر ہو کر مجھ سے مذاکرات کر سکے۔ مجھے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ 20 منٹ تک سڑک کے کنارے دھوپ میں کھڑا رہتا تو بلا وجہ آنے جانے والوں کی نظروں کا مرکز بن جاتا۔ میں وقت گزارنے کے لیے ایک چھوٹی مگر خوبصورت دکان میں داخل ہو گیا جس کے باہر لگے ہوئے سائن بورڈ پر گفٹ شاپ کے انگریزی الفاظ بہت نمایاں تھے۔ اندر کاؤنٹر کے پیچھے ایک بنی سوری ادھیڑ عمر خاتون نے میری آہٹ سن کر سر اٹھایا اور وہ سراپا تبسم بن کے میں جوابی مسکراہٹ بکھیرتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔ ویلکم یو ٹورسٹ، اس نے استقبالیہ فکرے کے ساتھ اپنی توتلی انگریزی میں ایک سوال داغ دیا۔ وہ تتلاہٹ اس کی کمزوری نہیں بلکہ مقامی لب و لہجے کی مجبوری تھی جو میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ ہاں میں سیاہ ہوں، میں نے اقرار کرتے ہوئے کہا۔ باہر سے گزرتے ہوئے تمہاری خوبصورت دکان نظر آئی اور میرے قدم بے اختیار اس طرف اٹھ گئے۔ میری زبان سے خوبصورتی کا ذکر سنتے ہی اس کے چہرے پر سرخی کی لہر سی توڑ گئی۔ اس نے شرمانے کی کوشش میں کچھ بے حجاب ہو کر میری طرف دیکھا، اپنی پلکیں جھکائی، پھر بولی، یہ تمہاری عزت افزائی ہے، ورنہ میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم یہاں سے کیا خریدنا پسند کرو گی؟ انگریزی سے واجبی واقفیت نے اس بیچاری کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے اس کی تردید ضروری نہیں سمجھی اور بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کوئی بھی ایسی چیز جو میں اپنی پسندیدہ عورت کو پیش کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ میں وہاں سے غزالہ کے لیے کچھ خرید ہی لوں۔ اوہ، تم کو عورتوں سے دلچسپی ہے؟ اس نے میری طرف جھک کر قدرے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ دکان میں اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا متنفس نہیں تھا۔ اس کے لہجے کی تبدیلی غیر ضروری تھی۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ میں نے دیکھا موضوع بدلتے ہی اس خاتون کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ میں صرف $5 فیس لے کر تمہیں چند قدم کے فاصلے پر
एक ऐसी जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ तुम्हें अपनी पसंद की कई औरतें मिल जाएंगी और तुम्हारी आज की शाम यादगार हो जाएगी। बिल्ली यकायक थैले से बाहर आ गई। क्या तुम सेलर्स बार का जिक्र कर रही हो? मैंने गैर इरादी तौर पर सवाल किया। मैन, कानों को हाथ लगाओ। डॉन बहुत मुअज्जज आदमी है। वो ऐसे चक्रों से कोसों दूर है। यहाँ रहने और कारोबार करने वालों को फख्र है कि वो डॉन के पड़ोसी हैं और सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। यह डॉन कौन है? मैंने दिलचस्पी जाहिर करते हुए सवाल किया। 6 बजे सेलर्स बार खुल जाएगा, अंदर जाकर उसकी तुम जियारत कर लेना, वो बोली। डॉन बहुत नेक नफ्स आदमी है। जिन बातों को खुद नापसंद करता है अपने पड़ोसियों को इनसे नहीं रोकता। ये डॉन की छोटी सी दुनिया है। इसकी वजह से पुलिस इतराती है, न टैक्स लेने वाले तंग करते हैं। बोलो, तुम $5 के बारे में क्या कहते हो? वक्त गुजारने के लिए $5 की कुर्बानी ज्यादा नहीं थी। तबादले की शरह से वो सैकड़ों भात बन जाते थे। औरत के दिमाग में शायद वही हिंसा चकरा रहा था। मैंने खामोशी से बटुआ निकाला और $5 काउंटर पर रख दिए। उसने वो नोट उठाकर फुर्ती से अपने ब्लाउज में उड़स लिया। इसका ब्लाउज मुख्तसर था, कमीज का गला बड़ा था। सब कुछ यूं जाहिर था कि नोट छुपाए जाने के बावजूद नहीं छुप सकेगा। मुझे साफ नजर आ रहे थे वो इस खातून का जाती मामला था। मैंने उसकी निशानदेही नहीं की। मेरे लिए इतना काफी था कि उसकी फीस अदा करके मैं कुछ देर के लिए वहां ठहरने का जवाज हासिल कर चुका था। वो शाम के इब्तदाई लम्हात थे। बाहर तेज धूप फैली हुई थी। इस गर्मी और सन्नाटे में दुकान में किसी गाहक का आने का इम्कान नहीं था। मैंने और से इजाजत लिए बगैर सिगरेट सुलगा ली। वो इस पर मुतरज नहीं हुई और बोली, तुम दुकान से निकलकर सेलर्स बार की तरफ चलोगे तो पीले रंग का नवा दरवाजा तुम्हारी 2 दस्तकों के जवाब में खुल जाएगा। मेरा नाम फेंगनी है। इसे सुनते ही तुम्हें अंदर बुला लिया जाएगा। 1 मिनट। मैंने हाथ उठाकर उसकी तकरीर का सिलसिला वहीं मुनक़ता कर दिया। नवा दरवाजा, 2 दस्तकें और फेंगनी का पासवर्ड, ये 3 बातें काफी हैं। इसके बाद के मराहिल सारी दुनिया में यकसा होते हैं। इंतखाब और मोल तोल की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हारे $5 का मुआवजे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वेरी गुड। औरत तहसीन अमेज लहजे में बोली, तुम पुराने खिलाड़ी मालूम होते हो। खेल के सारे असूल और ज़ाब्ते समझते हो। मुझे ऐसे गंगलों से सख्त नफरत है जो मुफ्त में नजरें सेंक कर मेरे पास लौटाते हैं और कोई बात न बनने की वजह से अपनी दी हुई फीस की वापसी का मुतालबा करते हैं। मैंने दुत्कार कर बका देती हूँ। वो रफ्ता रफ्ता खुलती जा रही थी। मैंने सारी हिलाकर कहा, तुम अच्छा करती हो। अब जरा सेलर्स बार के बारे में बता दो कि वहाँ क्या होता है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। खामोशी से अपनी गिरबान से $5 निकाल कर मेरे सामने फेंके और तेज आवाज में बोली, अगर तुम डॉन के खिलाफ छानबीन करने के इरादे से मेरे पास आए हो तो अपने नोट उठाओ और खामोशी से लौट जाओ। यहाँ कोई डॉन के बारे में जुबान नहीं खोलेगा। जहाँ भी जाओगे तुम्हें मायूसी का सामना करना पड़ेगा। डॉन से मुझे कुछ नहीं लेना। मैंने तुमसे सेलर्स बार के बारे में पूछा था। मैंने नोटों को हाथ लगाए बगैर अपनी सफाई पेश की। क्या तुम बार्स के बारे में नहीं जानती कि वहाँ क्या होता है? उसका लहजा तीखा था। दरअसल मेरा मसला दूसरा है, मैंने आहिस्तगी से कहा। मुझे शराब से नशा नहीं होता। मेरी जवाना नई दुनियाओं की सैर कराने लगती है। नो, उसने मेरी बात काट दी। डॉन के बार में कोई गैर कानूनी नशा नहीं मिलता। वो साफ सुथरा कारोबार करता है। तुम गलत जगह पर आ गए हो। तुम्हें गोदी की तरफ जाना चाहिए। वहां तुम्हें हशीश, चर्स और हेरोइन सब मिल जाएंगी। बंदरगाहें औरत को तरसे हुए मल्लाहों का मस्कन होती हैं। तुम्हारी बताई हुई किसी खूबसूरत औरत के साथ उधर कर रुक करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बाज चोरा पुश्त मल्लाह औरत के लिए लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हैं। उसे नोट उठाकर हरीसाना अंदाज में दोबारा वहीं रख लिया जहां उसने पहले रखा था और बोली, ये औरत की बड़ाई है कि इसके लिए सब लड़ते हैं। वो किसी के लिए नहीं लड़ती। तुम्हें इन झगड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। पैसे खर्च करोगे तो इसी घर में हर चीज मिल जाएगी। वहां हर रंग के लोग आते हैं। इससे बातें करती हुई मेरी निगाहें दुकान में लगे हुए वाल क्लाक का तवाफ भी करती रही थी। मैंने $5 में वहां खासा वक्त गुजार लिया था। बैंकॉक की जिंदगी का एक नया रुख सामने आने के साथ साथ मुझे डॉन के बारे में कुछ नई बातें मालूम हो गई थी। 4 बजने में चंद मिनट बाकी रह गए थे। वह वक्त डॉन के ठिकाने तक पहुंचने में सर्फ हो जाता। मैंने बैंकॉक की इस अजीम औरत को हाथ उठाकर अलविदा कहा जो $5 में जन गुजीदा मर्दों की हाजत रवाई के लिए कमर बस्ता रहती थी। मैं सेलर्स बार के बंद दरवाजे के सामने से गुजरता हुआ उस कोने की तरफ चल दिया जो निस्बतन करीब था। डॉन से मुलाकात का वक्त करीब आने के साथ साथ मेरी आसाबी कशीदगी में खुद ब खुद कमी आती चली गई थी। इस वक्त मैं खुद को बहुत मुतमईन और आसूदा महसूस कर रहा था। एक गंभीर मसला सर पर आन पड़ा था तो इसके बारे में ज्यादा सोच विचार करके खुद को हल्कान करना बेसूद था। वक्त पर सोचने वाली बातें ही इस वक्त मेरे काम आ सकती थी। सेलर्स बार की पिछली गली में दाखिल होते हुए मैंने बची हुई सिगरेट एक तरफ उछाल दी।
इस वक्त वो गली दूर तक सुनसान पड़ी हुई थी। मैं टहलने के से अंदाज में पेश कदमी करता हुआ सेलर्स बार के अकबी दरवाजे तक पहुंचा। तब भी 4 बजने में 1 मिनट से कदरे ज्यादा वक्त बाकी था। मैंने इस चौबी दरवाजे का जायजा लेना शुरू कर दिया, जो अपनी साख्त और मजबूती की वजह से बज़ाहिर फौलाद का बना हुआ मालूम होता था। ठीक 4 बजे मैंने डोर बेल का स्विच दबा दिया था। इस दौरान में गली बदस्तूर सुनसान पड़ी रही। किसी दरवाजे से कोई आया न गया। शायद इस इलाके के सारे मकीन बैंकाक की गर्मी से घबरा कर अपने घरों में बड़े सस्ता रहे थे। अंदर घंटी बजने की आवाज़ सुनाई थी। कलील से वक्फे के बाद दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने सेलर्स बार में काम करने वाली वही खूबरू और सुबक अंदाम लड़की खड़ी हुई थी जिसने पिछली बार मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। इस वक्त लड़की के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसकी आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे। अंदर आ जाओ, उसने सहमी हुई आवाज़ में कहा। आज तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। मैंने दरवाजे में से गुजरते हुए सरगोशी की। हाँ, टान का मूड खराब है। दरवाज़ा बंद होने के बाद नीम तारीकी में उसकी खोई खोई सी आवाज़ उभरी। ऊपर चले जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लड़की इस तंग राहदारी में बाहर की तरफ मुड़ गई। मैं ऊपर जाने वाले 24 जीनों पर हो लिया। पिछली बार डान ने जीने के इख्तिताम पर मेरा इस्तकबाल किया था। इस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। कदम कदम पर मनफी तब्दीलियां मुझे खतरे से आगाह कर रही थी। मैं ऊपरी मंजिल के रहायशी हाल में दाखिल हुआ तो डान सफेद सिल्क रवायती गौन और पाजामे में मलबूस अपनी बड़ी सी मसहरी पर दराज था। इसका सराहने अस्काच का गिलास रखा हुआ था जिसमें तैरते हुए बर्फ के डले दूर से छिलमिलाते हुए नजर आ रहे थे। डान के चेहरे पर खुशमनाक सी संजीदगी छाई हुई थी। मेरी आहट सुनकर भी वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था। मैंने इस मोहलत से फायदा उठाकर हाल में नजरें तुड़ाई। वहां किसी और का वजूद नहीं था। डान, मैं हाजिर हो गया हूँ। मैंने रुक कर अपनी आमद का ऐलान किया। चले आओ, उसने लेटे लेटे कहा। उसकी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। मैंने मसहरी के करीब जाकर अपना सर झुकाते हुए उसे ताजीम दी। वो बला का अना परस्त था। मैंने उसकी अना से खेल कर उसकी हमायत हासिल की थी। मुझे तवक्का थी कि इस बार भी वही हर बार कारगर साबित हो सकेगा। 2 सवाल थे जिनकी जवाबदही के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। डान ने किसी तमहीद के बगैर अचानक अपनी बात शुरू कर दी। अब इनसे ज्यादा अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। मैं मसहरी के करीब किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा हुआ था। वहां 2 मुनक्कश और आरामदेह 24 कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, लेकिन डान ने मुझे बैठने की पेशकश नहीं की थी। क्या तुम ये समझते हो कि मैं सेलर्स बार में भंग और चर्स बेचता हूँ? उसने कदरे तवक्कुफ के बाद मुझसे सवाल किया। डान की जुबान से वो गैर मुतवक्का सवाल सुनकर मेरी खोपड़ी चकरा की। सोची समझी बातें थरी की थरी रह गई। मैंने बौखला कर कहा, डान, सवाल पैदा नहीं होता। मैं तुम्हारे बारे में मर कर भी ऐसी बात नहीं सोच सकता। बकवास बंद करो। डान धाड़ा और मैं अपनी जगह पर हिल कर रह गया। अभी तुम गिफ्ट शॉप वाली से मेरे बारे में क्या पूछगिछ कर रहे थे? गिफ्ट शॉप वाली का जिक्र आते ही मुझ पर 14 तबक रोशन हो गए। इस इलाके में डान का नेटवर्क बहुत मजबूत था। इस औरत ने जरा सी देर में मेरे बारे में हर बार डान तक पहुंचा दी थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा डान तक पहुंचने का इरादा न होता तो इसका कोई ना कोई आदमी मुझे बाहर घेर चुका होता। मार कुटाई के बाद नौबत अगवा तक भी पहुंच सकती थी। मैंने वक्त गुजारने के लिए इस औरत से डान और सेल्सबार के बारे में बेपरवाही से जो बातें की थी वो डान की फिक्रमंद होने के लिए काफी से ज्यादा थी। डान, मैं बेकसूर हूँ। मैंने घिघिया कर अपनी सफाई पेश की। गलती यह हुई कि ट्रैफिक जाम न होने की वजह से मैं वक्त से पहले यहाँ आ गया था। बाहर गर्मी थी। मैं इस मक्कार नायिका की दुकान में चला गया। $5 देकर उससे बातें की तो उसने मुझे सेलर्स बार में शराब नोशी का मशवरा दिया। मैंने यूं ही उससे कह दिया कि मुझे सिर्फ मैरी जवाना से नशा होता है। उसने इतनी सी बात को तुम्हारे सामने पतंगड़ बना दिया। बस। उसने बिस्तर पर जोर से हाथ मारकर कहा, याद रखना कि इस इलाके में नहीं, पूरे बैंकाक में मेरे जान निसार रहते हैं। तुम सांस भी लोगे तो इसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच जाएगी। तुमको मेरे बारे में फजूल गोई की क्या जरूरत थी? मैंने कोई नाजेबा बात नहीं की, मैंने गिड़गिड़ा कर कहा। उसने खुद सेलर्स बार का और तुम्हारा जिक्र निकाला था। कह रही थी कि तुम्हारी वजह से कोई सरकारी एहलकार इधर का रुख करने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ रहने वाले तुम्हारे साए में सारे गैर कानूनी काम करते हैं। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने तुम्हारी बड़ाई के इन किस्सों में दिलचस्पी ली थी। मैंने इस तोखली औरत को डान के हाथों सजा दिलवाने के लिए इल्जाम उसी के सर डाल दिया। अपनी ज़हनी परागंदगी के बावजूद मैंने ये बात नोट कर ली थी कि उस औरत के लिए एक नाजेबा लफ्ज के इस्तेमाल पर डान ने किसी रद्दमल का मुजाहिरा नहीं किया। शायद उसे इस औरत की मजमूम सरगर्मियों का बखूबी इल्म था। वो बहुत बोलती है, डान ने दांत पीस कर कहा और मसहरी की पुश्तगाह से टेक लगाकर सीधा बैठ गया। इसकी टांगें इसी तरह फैली रही। तुमसे मुझे पता चल गया कि वो उल्लू की पट्टी क्या क्या बकती रहती है। दूसरे उसकी बातें सुनकर अपनी राह हो लेते होंगे। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जरूरत के वक्त भी मुश्किल से बोलेगी। इसे पता होता कि मैं असल में तुमसे ही मिलने आया हूं तो वो मेरी शिकायत न करती। इस पर बुरा वक्त आया हुआ था। सबक मिलेगा तो सीधी हो जाएगी। औरत कभी सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी है और टेढ़ी ही रहेगी। डान के अल्फाज में उसके जाती तजर्बात की तलखी उमड़ आई।
डॉन के गुस्से का रुख चुगलखोर औरत की तरफ मबजूल कराने के नतीजे में मेरे साथ उसका रवैया नर्म पड़ गया था। मैंने जल्दी से उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं भी अपनी औरत से बहुत नाला हूँ। वो मेरे हाथों पीटती रहती है मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। उसे अपने ऊपर घमंड है। वो अपनी अदाएं दिखाने पर आती है तो मेरा गुस्सा काफूर हो जाता है। डॉन ने गिलास उठाकर विस्की का एक कपड़ा घूंट लिया, फिर मुंह बनाते हुए बोला, औरत बिनते अकरब है मगर इस बिच्छू से मिलाप में भी बहुत मजा है। हर मर्द इसे बर्दाश्त करने पर मजबूर है। मैंने सुना है कि तुम्हारी औरत बहुत खूबसूरत है। डॉन, मेरी दुखती रग न छेड़ो। वो कितनी खूबसूरत है ये मैं ही जानता हूँ। मैंने गहरा सांस लेकर मुतासफाना लहजे में कहा। अपने दुख के इजहार के साथ मैंने वो जिक्र भी टाल दिया। बैठ जाओ, तुम खड़े क्यों हो? मेरे और अपने मुश्तरका दर्द का इल्म होते ही उसे याद आ गया कि मैं देर से खड़ा हुआ था। मैं सुकड़ कर कुर्सी पर बैठ गया। मुझे खुशी थी कि इस वक्त तक मेरी हिकमत अमली कामयाब रही थी। इस कामयाबी के लिए मैं गिफ्ट शॉप वाली औरत का एहसानमंद था जिसने मेरी कही हुई बातों की मुखबरी करके डॉन के दिमाग में एक नया मसला डाल दिया था। यूं असल मसाइल वक्ती तौर पर पसे पुष्ट चले गए थे। बात चली तो बात से बात निकलती चली गई और मुझे गजाला पर कुछ इल्जाम तराशियां करके डॉन को यह बावर कराने का मौका मिल गया कि उसकी तरह मैं भी औरत का डसा हुआ था। कमरे में गहरा सकूत छा गया। डॉन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने गिलास से विस्की के 2 छोटे घूंट लिए। इस दौरान में उसकी नजरें पुरख्याल अंदाज में अपने पैरों के अंगूठों पर जमी नहीं। वो कुछ सोच रहा था। मुझे शुबा हुआ कि उसे वो बदतरीन साहतें याद आ गई थी जब वो एक कम सिन लड़के के हाथों भरे बाजार में जूती से पिटा था। वो इसके अरूज की इंतहा और जवाल की इब्तदा थी। इन लम्हों को वो जिंदगी पर फरामोश नहीं कर सकता था। सेकंड मिनट में बदले और वो दौरानिया तूल पकड़ता चला गया। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो खुली आंखों से साथ बैठे बैठे सो गया हो। उसकी पलकें झपक रही थीं, न दिल जुम्बिश कर रहा था। वो अपनी जगह मुंजमद होकर रह गया था। मैंने खनकार कर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने का इरादा किया था कि अचानक उसकी वो महवियत खत्म हो गई। उसने जरा चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम्हारे दोनों पासपोर्ट कहाँ हैं? मैंने अपनी जेब से पासपोर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने देखे बगैर इन्हें यूं ही अपने तकिए के नीचे रख लिया। उसने ये देखने की जहमत भी नहीं की कि इन दोनों सब्ज किताबों में नाम और तस्वीरें किसकी थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा सांस सीने में अटक कर रह गया हो। लच्छेदार बातों की रवानी में बहकर भी डॉन अपने असल इरादों को फरामोश नहीं कर सका था। तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हारे पासपोर्ट क्यों रखे हैं? उसने अजीब सा लहजे में मुझसे सवाल किया। अपनी बातें तुम ही जानते हो। मुझे खुशी है कि तुमने इन्हें फाड़ कर नहीं फेंका। तुम्हें परेशानी नहीं है कि इनके बगैर तुम थाईलैंड से बाहर नहीं निकल सकोगे? मेरे लहजे की बेपरवाही ने उसे मुताज्जुब कर दिया। मैं तुम्हारी अमान में हूँ डॉन। इन गत्तों और कागजों की अहमियत इन लोगों के लिए होती है जो बेसहारा और यतीम होते हैं। मुझे मालूम है कि तुम जब चाहोगे मुझे किसी कागज के बगैर यहाँ से निकलवा दोगे। मेरा रद्दमल उसके लिए नाकाबिले यकीन था। उसकी आंखों में तहायुर की झलकियां तैर रही थी। उसने कहा, ये जानते हो कि अब मैं ना चाहूं तो तुम कभी यहाँ से नहीं जा सकोगे, मेरे गुलाम बनकर रह जाओगे। मैंने पहली मुलाकात में तुम्हारी गुलामी कबूल कर ली थी डॉन। इस पर पासपोर्टों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दिल खड़ा करके बेखौफी से जवाब दिया, मैं राजन का सर कुचलने के लिए यहाँ आया हूँ। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता यहाँ से जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर जाने या राजन को मारने के इरादे से आया हूँ, इसीलिए बीवी भी मेरे साथ है। मैं मर गया तो खुदकुशी कर लेगी। वो पहली बार मुंह टेढ़ा करके जहरीली आवाज में हंसा और बोला, कोई किसी के लिए खुदकुशी नहीं करता। तुम मारे गए तो वो किसी और के साथ भाग जाएगी। मर्द और औरत को हमेशा एक दूसरे की जरूरत रहती है, वो अकेले नहीं रह सकते। मैंने महसूस किया कि जहां भी हतमी तौर पर गजाला का जिक्र आता था, डॉन असल बात को छोड़कर उसी तज़किरे को पकड़ लेता था। एक लंबी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद शायद वो अपने महबूबा की बदसलूकी पर अंदर से बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए मेरी बीवी में कीड़े निकाल कर आसूदगी महसूस कर रहा था। डॉन, मरने के बाद आदमी की लाश को भेड़िए नोचते हैं या उसे इज्जत से जमीन में दफन कर दिया जाता है, यह बात कोई नहीं जानता। जब मुझे अपनी खबर नहीं तो मैं अपनी औरत की परवाह क्यों करूं? उसकी मर्जी, मेरे बाद वो जो चाहे करती रहे। मैंने जरा जज्बाती लहजे में बात करके इस मर्तबा फिर वो मौजू खत्म करने की कोशिश की। तुम्हें यहाँ से जाने की परवाह नहीं है तो तुमने मुझे या चाउफान को बताए बगैर होटल छोड़ने की कोशिश क्यों की थी? वो दोबारा अपने असल मौजू पर आ गया। तुमने मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। चाउफान भी मुझे रहाइश बदलने का मशवरा दे चुका था। मैंने इस पर अमल कर डाला जो कोई जुर्म नहीं था। छोटा राजन के मेहमान को मारते ही तुम्हें होटल छोड़ने का ख्याल क्यों आया? यह एक इत्तिफाक था। उसे मारने के बाद मैंने आधा दिन होटल में गुजारा था। उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि मेरी दलीलें उसके दिलो दिमाग पर असर अंदाज हो रही थी। उसने कहा, कानून से लाइल्मी मुआफी का उज़र नहीं बन सकती। तुमने होटल छोड़ने का बंदोबस्त करके बड़ी गलती की थी। इसकी पादाश में मैंने तुम्हारे पासपोर्ट ले लिए हैं। तुम्हारे पास वो ज्यादा महफूज रहेंगे।
मैं भाग दौड़ में इनसे महरूम हो सकता हूँ। मैंने कोशिश की है कि तुम्हारे सवालों के दुरुस्त जवाब दूँ। इसके बाद भी तुम्हारा ये फैसला है तो मुझे कबूल है। अभी मैंने कोई सवाल नहीं किया, तुम्हें यह बताया है कि तुम्हारे पासपोर्ट क्यों लिए गए हैं। अब तुम्हें 2 बातों का जवाब देना है। तुम्हें ये इल्हाम कैसे हुआ कि छोटा राजन का मेहमान लोहपोरी में है। नंबर 2 ये कि इस मेहमान से तुम्हारी क्या दुश्मनी चल रही थी। डान ने अपने कार्ड्स मेरे सामने रख दिए। तुमने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसे इस तरह जहन्नुम वासिल किया है कि मैं हैरान रह गया हूँ। ऐसे लर्जा के अंजाम के बारे में सोचना भी मेरे लिए मुहाल था। ऐसा मालूम होता है जैसे तुम्हें छोटे राजन से ज्यादा उसके मेहमान की जुस्तजू थी।